हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आई थिंक न्यूमेरिकल्स किया था रिलेटेड टू कोलिजन्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन भी हमने किया था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, कहाँ तक हुआ है? दिखाओ दिखाओ, लास्ट पेज दिखाओ, कौन सा हुआ था अपना लास्ट, क्या हुआ था? ओके, काइनेटिक एनर्जी का भी कर दिया था, ठीक है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी हो गया है। ओके, चलो बढ़िया, चलेगा स्टूडेंट, चलो आ जाओ। सो टुडे we are going to study about work done. Okay, work done by a force. Okay, work done by a force. Okay, आज हम लोग वर्क के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय वर्क? हाउ डू वी डिफाइन वर्क? ओके, so work is defined whenever we apply force on an object, and if that object gets displaced, okay, if that object get displaced, we say work has been done. ओके, सो अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं इस मोबाइल बॉक्स को यहां से उठा के स्टूडेंट्स, अगर मैं उसको यहां पे रख रहा हूं, so this is a work done. Why it is a work done? Sir, because I applied force on this box, number one. Number two, because of the force that I applied, this box got displaced from one position to another position. So whenever we apply force on an object, and if that object is displaced from its initial position, we say work has been done. If there is no displacement even after the application of force, I'll repeat myself, even after application of force, there is no displacement in an object, we will say that work has not been done. To give you a very simple example, let me apply force on this wall. So I am applying force on this wall, but ये wall displace नहीं हुआ. There is no displacement in the wall. So in this particular case, work done by me or work done by the force applied by me is equal to 0. So work का funda is very simple. Number one, we apply force, and if that force produces any displacement, simple. Okay. So when an applied force, when an applied force produces displacement, we say that work has been done. ओके, सो जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे एंड फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, वी से वर्क हैज बीन डन. अच्छा सर, हाउ टू कैलकुलेट वर्क? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? ओके, सो द फॉर्मूला फॉर वर्क इज वेरी वेरी सिंपल. ओके, formula for work is very very simple. So work is equal to dot product of force and displacement. So work is equal to F dot S, force into displacement, and that too it is a dot product which can further be written as Fs into cos of theta. हम लोग ने मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ा है ये, स्केलर्स एंड वेक्टर टॉपिक हमने स्टडी किया था अबाउट द डॉट प्रोडक्ट. If we have two vectors A and B and there is a dot product with them, so A dot B can be written as AB cos theta, where theta is angle between the two vectors. तो यहां पर भी theta क्या रहेगा? तो here theta will be the angle between force and displacement. So between force and displacement, so between force and displacement जो भी एंगल होगा that will be the value of theta. अच्छा, और एक चीज स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक बहुत ही सिंपल सा एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं. अजम्पशन मतलब, अजम्पशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड, हम कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है.
या ये गिवन है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, दैट व्हाटएवर फोर्स वी आर अप्लाइंग हियर इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। ओके, तो यहां पर इस फॉर्मूले में गिवन है, मतलब है मान के चलना है, अपने को कंसीडर करके चलना है कि जो फोर्स अपना यहां पर है दैट फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। क्यों? क्योंकि सर अगर फोर्स वेरिएबल हुआ, सपोज कर लो फोर्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में वर्क कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा सा अलग होगा। So अगर we have a constant force applied on an object, the work done is equal to F dot S, which is Fs cos theta, where theta is angle between force and displacement, and here we are applying a constant force over a body. Okay, now on the basis of these formula, एक मिनट, लेक्चर के बीच में सर का फोन आ रहा है। सर आप रिकॉर्डिंग पे हो, रिकॉर्डिंग में भी आपका नाम आएगा सर। हेलो, आपको अमर कर रहा हूं सर मैं, बोलो ना सर। हम्म हम्म थोड़ा रुक जाओ ना भाई, एक एक खत्म करके टॉपिक फोन करूँ क्या, लेक्चर में हूं मैं, थोड़ा देना, हाँ टाइम, हाँ ठीक, हाँ ओके, चलो भाई। सो F is a constant force, चलो इधर आओ। Now based on the angle between F and S, वर्क के तीन वैल्यूज हो सकते हैं। वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, एंड वर्क कैन बी जीरो एज वेल। ओके, सो यहां पे मैं ऐड करूंगा वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क it can be positive, it can be zero, and work is negative as well। तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, so work can be negative as well। चलो, now first case, now let us say, let's talk about the positive work, under which circumstances work अपना पॉजिटिव रहेगा। तो आइडिया बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, if the body is displaced in the direction of applied force। स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में अगर मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वी विल से दैट वर्क डन इज अ पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। सो लेट अस से फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, इस ऑब्जेक्ट को हमने सरफेस पे प्लेस करके रखा हुआ है। अब लेट अस से इस ऑब्जेक्ट पे मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट अस से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया ऐसे। अब क्योंकि मैं फोर्स इस डायरेक्शन में प्लेस कर रहा हूं बेटा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी सेम डायरेक्शन में हो गया, सपोज कर लो, ठीक है। तो लेट अस से कि ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने फोर्स यहां से लगाया, तो फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट इधर से हटके इधर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ओनली, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इफ यू कंपेयर बोथ द वेक्टर्स F and S, both vectors are parallel to each other since force and displacement are in same direction, and since force and displacement are in same direction, the angle between them theta will be equal to कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री। यू कैन सी ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है बेटा एक दूसरे से, जिस डायरेक्शन में फोर्स है बेटा उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। So theta will be 0. So if I put theta 0 in this equation, it will be Fs into cos of 0, and cos of 0 का वैल्यू क्या होता है 1। So work done will be simply W is equal to Fs into cos of 0. This will be Fs into 1, which is simply F into क्या रहेगा S, force into displacement। तो यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि वर्क का जो वैल्यू आएगा बेटा वो पॉजिटिव आएगा, वर्क का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन वी से पॉजिटिव वर्क हुआ है। मैंने इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश किया बेटा, इस डायरेक्शन मैंने फोर्स इधर लगाया है और ये बॉक्स भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो मैंने जो वर्क किया है दैट इज अ पॉजिटिव वर्क। ओके, चलो सेकेंड केस पे आते हैं, नेगेटिव वर्क। क्या कोई गेस कर सकता है नेगेटिव वर्क कब होगा? एनी गेस, नेगेटिव वर्क कब होगा?
Rebounds, is the rebounds thing necessary? Exactly. Very good, beta. So when the force is applied on an object in particular direction and displacement उसके opposite direction में हो रहा है, so we will say that the work done by that particular force is negative. सर ये कब होगा सर? हमने फोर्स एक डायरेक्शन में लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? कैसे हो गया? इधर देखो, सपोज दिस इज ग्राउंड, देखो ध्यान से देखो, एंड लेट मी थ्रो एन ऑब्जेक्ट और अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तुम यहां से एक ऑब्जेक्ट या बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, चलो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. ठीक है, अब इस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, देखो ये ऑब्जेक्ट पहले यहां से यहां गया, इधर से इधर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है बेटा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. द बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. बट इफ we look at the direction of gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? सर इस पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सर इस पॉइंट पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. So guys, you can see the gravitational force is in downward direction, but the displacement is in upward direction. So both force and displacement are opposite to each other. So जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा विद द डिस्प्लेसमेंट, वी विल से वर्क डन विल बी नेगेटिव. सर नेगेटिव क्यों हो गया? देखो सिंपल है, अब फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, the displacement is in upward direction, they both are opposite to each other. So in this particular case theta will become 180 degree. That means angle between force and displacement is 180 degree. अब अगर वर्क के फॉर्मूले में ये थीटा पुट करूंगा तो वर्क W will be equal to Fs into cos of 180 degree. And students, we all know cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो वर्क डन will be Fg into S. So I will say work done by gravity, work done by gravity or work done by gravitation is negative in this particular case. स्टूडेंट्स, हमको हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे कि वर्क डन बाय विच फोर्स. वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय द टेंशन. वर्क कौन कर रहा है? बिकॉज स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या बोलता है अपने को? वर्क कब होगा? जब हम ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करेंगे बेटा? फोर्स. तो जब भी आप वर्क के बारे में सोचोगे तो ये भी सोचना कि वर्क डन बाय विच फोर्स. कौन से फोर्स की बात हो रही है? इज इट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इट द फ्रिक्शन फोर्स, इज इट द अप्लाइड फोर्स? विच फोर्स की बात हो रही है? तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको वर्क का बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपके दिमाग में ये भी आता है कि वर्क डन बाय विच फोर्स, ये जरूरी है. So in our case, in this particular case, I will say work done by the gravitational force is equal to 0. ग्रेविटी का वर्क डन 0 है यहाँ पे, सॉरी 0 बोल रहा हूँ, नेगेटिव है यहाँ पे. ओके, अच्छा 0 कब होगा? 0 कब होगा? 0 कब होगा? अब ये भी कुछ गेस कर सकता है कोई? 0 वर्क. ओके, और एनी अदर केस? डजंट मूव ना. हाँ तो वही बोला ना, डजंट मूव. So end of the day the body is not getting displaced, right? As simple as that. So important एक पॉइंट यहाँ पे आया है कि 0 वर्क कब होगा? When the displacement is 0. मतलब even after the application of force, even after application of force, the body is not getting displaced at all. डिस्प्लेसमेंट ही 0 है. तो जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, अगर इसमें एस का वैल्यू ही 0 हो गया तो वर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, सो इफ द डिस्प्लेसमेंट of an object, displacement of an object
is 0, the work done is 0. ओके अच्छा, एक और केस में वर्क डन 0 हो सकता है स्टूडेंट्स, एक और केस सोचो, एंगल 0 हो, एंगल 0 हो, एंगल 0 हो, हाँ एंगल क्या होगा भाई 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. Okay, so when applied force is perpendicular to the displacement, we say that work done is 0. Okay, to give you an example again, chalo, suppose again we have a horizontal surface, or is horizontal surface pe we have put an object here like this. Okay, an object इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, the displacement of an object is in this particular direction. अब इधर देखो ध्यान से, what is the gravitational force or what is the direction of gravitational force acting on this object? What will be the direction of gravitational force acting on this particular object? बोलो बोलो कुछ तो बोलो. Downward, simple. सर ग्रेविटी हमेशा कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है? डाउनवर्ड्स. नथिंग न्यू सर, पुराना बात है ये. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इफ यू लुक एट द एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट्स एंगल कितना दिख रहा है अपने को? 90. सो यहाँ पे थीटा 90 हो गया, cos 90 का वैल्यू क्या हो गया बच्चा लोग? 0. तो वर्क डन इज ऑल्सो 0. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, स्टूडेंट्स वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0. ग्रेविटी ने कोई वर्क किया ही नहीं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में. अच्छा, अभी हम लोग ने ये भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल एक सरफेस पे रखते हैं, ठीक है, इफ यू पुट एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो क्या होगा? तो सर ये ऑब्जेक्ट का वेट, ये हमने स्टडी किया पहले से, ऑब्जेक्ट का वेट विल पुश द सरफेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस के ऊपर किया एक्शन, तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट को देगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और उस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग बुलाते हैं नॉर्मल रिएक्शन, विच इज एन. नॉर्मल रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, नॉर्मल रिएक्शन का भी एंगल कितना बन रहा है? नॉर्मल रिएक्शन का 90. तो नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, अगेन दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So work done by normal reaction is also 0 in this particular case. तो इस केस में स्टूडेंट्स, इस केस में वर्क डन by both gravitational force and the normal reaction is equal to 0. So in this particular case मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा that the work done by gravity and normal reaction is equal to 0. Okay, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बोथ वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? 0. तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने 3 केस स्टडी किए कि कौन कौन से केस में वर्क पॉजिटिव होगा, कौन कौन से केस में 0 होगा, कौन कौन से केस में नेगेटिव होगा. तो पॉजिटिव का सिंपल है, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क विल बी पॉजिटिव. सर अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन विल बी नेगेटिव. And work will be 0 under two circumstances, that if the displacement is 0 in spite of the application of force, and second, if the applied force and displacement are perpendicular to each other. In all these cases the work done will be 0. तो वर्क का बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चा लोग, एक सिंपल फॉर्मूला है, उसको अपने को याद रखना है. W is equal to F dot S, which is Fs cos theta, where theta is angle between F and S.
और ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करे बेटा, कांस्टेंट फोर्स, मतलब वो फोर्स का वैल्यू फिक्स है, इट इज नॉट चेंजिंग। क्योंकि अगर फोर्स वेरिएबल हुआ, सपोज कॉन्स्टेंटली फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में वर्क कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। क्या मेथड है मैं आपको बताता हूं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, सपोज फोर्स का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, वर्क चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, इधर ध्यान दो, ये हमारा y एक्सिस है, लेट्स से दिस इज y एक्सिस, से दिस इज x एक्सिस। ओके, से दिस इज डिस्प्लेसमेंट, से दिस इज फोर्स। ओके, तो फोर्स का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, यू कैन सी। ओके, इधर देखो, अब फोर्स का जो वैल्यू, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, फोर्स का वैल्यू जो है वो पूरा चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। देखो इस टाइम पे फोर्स का वैल्यू ये है, इस टाइम पे फोर्स का वैल्यू ये है, इस टाइम पे फोर्स का वैल्यू ये है। फोर्स का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। एक वेरिएबल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स नहीं, इट इज नॉट ऑफ 6 न्यूटन, इट कैन बी 6, इट कैन बी 6.1, 5.9, कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ या फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। अब ऐसे केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको निकालता हूं यहां से, इसकी अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, ध्यान दो यार, बहुत सिंपल है बेटा। ओके, सपोज मैं इस ग्राफ पे एक बहुत ही स्मॉल, ध्यान दो बेटा, एकदम ध्यान दो, बहुत सिंपल, एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करता हूं, वेरी स्मॉल सेक्शन, वेरी वेरी स्मॉल। ये सेक्शन इतना स्मॉल है कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल है। लेट अस से जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, बेटा इज इन्फाइनेटली स्मॉल, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज लेट अस से ds। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ds, अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल। एंड इफ यू लुक एट द वैल्यू ऑफ फोर्स हियर, अब ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि इस पॉइंट के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई कैन से दैट फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है बच्चा लोग कि इसके लिए मैं फोर्स का वैल्यू क्या अज्यूम कर सकता हूं, कांस्टेंट। ये फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर मुझे इसका वर्क निकालना पड़े इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए, तो वर्क क्या होगा, तो आई विल से लेट dw मतलब स्मॉल वर्क डन, dw बी द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय ds मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क लगा dw। सर वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, सर वर्क का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, इट इज f डॉट क्या आएगा बच्चा लोग, ds। तो यहां पे इतना वर्क निकालने के लिए, इसका वर्क निकालने के लिए कितना वर्क आया सर, इसको वर्क आया इसका dw। अच्छा सर सेम काम अब मैं दूसरे जगह पे रिपीट करूंगा, सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट सम अदर प्लेस। यहां पे आई टेक अ वेरी स्मॉल, I take a very small displacement here, same। अभी इतना स्मॉल है बच्चा लोग, इतना स्मॉल है ये कि इसके लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसके लिए भी फोर्स का वैल्यू क्या है बच्चा लोग, कांस्टेंट। इसका भी वर्क मैंने निकाला इसका वर्क कितना आ गया dw। अब ऐसे करते करते सब इसे छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स का मैं वर्क निकालते रहूंगा, और हर एक छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना रहेगा भाई मेरा, dw। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो, ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है ना, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को मैं बेबी स्टेप्स में कट कर रहा हूं, और पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं एक छोटे से बेबी स्टेप के लिए कितना वर्क लग रहा है। अब मुझे बेबी स्टेप का वर्क मालूम पड़े कितना है भाई dw, तो टोटल वर्क कितना होगा स्टूडेंट्स, इन सारे dw's को मुझे सिर्फ क्या करना है बच्चा लोग, ऐड करना है। तो मैं इस पूरे वर्क को मैं ऐड करूंगा, तो देयरफॉर टोटल वर्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा बच्चा लोग, स्मॉल वर्क dw। अच्छा मैं ऐड कहां से कहां करूंगा,
सर देखो ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो लेटर से उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एस आई है और जो फाइनल वाला है वो एस एफ है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यहां पर आएगा एफ डॉट डी एस, सिंपल। और जब यहाँ पे सारे स्मॉल स्मॉल डी डब्ल्यूज को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल एरिया ऑफ द कर्व मिलेगा। देखो ना सिंपल है बच्चा लोग, अगर मैंने ये निकाला, ये फाइंड आउट किया, दिस इज एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप, इस छोटे स्ट्रिप का एरिया है, फिर मैंने यहां पे एरिया निकाला इसका स्मॉल एरिया, फिर यहां पे भी निकालूंगा, यहां भी निकालूंगा, तो ऐसे करते करते मैं सारा फ्रॉम एस आई टू एस एफ, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सबका पूरा एरिया में निकालूंगा। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, तो हम लोग एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो क्या करना है अपने को, सर अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, W is equal to integration of dWs, which is integration of f dot ds from initial to final, which is nothing but area under force and displacement graph। अगर आप लोग अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो देखो सिंपल आइडिया सुनो, अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो सपोज कर लो, सब हटा दो, सपोज कर लो, ध्यान दो, ये ऐसा था ना, ये स्मॉल स्ट्रिप है, स्मॉल स्ट्रिप, इसका एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसका लेंथ क्या है, देखो ये लेंथ है इसका, विच इज इक्वल टू एफ, बराबर, विच इज इक्वल टू एफ। तो इसका एरिया कितना होगा, सर इसका एरिया होगा एफ, और ये इसका जो ब्रेथ है ये कितना मैंने लिया है, डी एस। तो एफ डॉट क्या हो गया बच्चा लोग, डी एस। इसका एरिया कितना हो गया, अगेन सर इसके लिए भी फोर्स कितना है, एफ, इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा लोग, डी एस। देखो क्या क्या मैंने देखा यहाँ पे, एरिया जब मैं निकाल रहा हूँ इसका, तो एरिया मुझे क्या दे रहा है, एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस क्या था, मेरा स्मॉल वर्क था डी डब्ल्यू। अब जब मैंने सारे डी डब्ल्यूज को ऐड किया, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स को मैंने ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो मुझे टोटल वर्क मिल रहा है। और टोटल वर्क के साथ साथ मैं यहाँ पे एरिया को भी तो ऐड कर रहा हूँ ना बच्चा लोग, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सपोज मैंने यहाँ पे भी एक स्मॉल स्ट्रिप लिया, इसका भी एरिया, फिर सर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप लिया, इसका भी एरिया। तो ऐसे करते करते मैं हर एक स्मॉल स्ट्रिप के एरियाज को ही क्या कर रहा हूँ बेटा, ऐड कर रहा हूँ। जब मैं सारे एरियाज को ऐड करूंगा तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल मैं सारे एरियाज को ही ऐड कर रहा हूं, तो जब मैंने टोटल एरिया ऐड किया तो मुझे मिलेगा टोटल एरिया अंडर द एफएस ग्राफ, एंड दैट एरिया विल गिव मी द टोटल वर्क। ओके, तो यहां पर अगर हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है तो अपने को दो काम करना है। पहला काम अपने को करना है, इंटीग्रेट करना है ईच एंड एवरी स्मॉल वर्क, एंड दैट विल गिव यू एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक इंटीग्रेशन जो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और दूसरा ग्राफिकल क्वेश्चन जहां पे आपको ग्राफ में एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो टाइप के क्वेश्चंस अपने को इसके ऊपर आएंगे, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ओके, देखो मैंने यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं किया, बहुत सिंपल काम है। एक स्मॉल वर्क मैंने फाइंड आउट किया कि अगर अब ऑब्जेक्ट डीएस से डिस्प्लेस होता है, बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस से डिस्प्लेस होता है, कितना वर्क लगेगा, तो सर उसका वर्क रहेगा, स्मॉल वर्क रहेगा डी डब्ल्यू। ओके, एंड दैट dw is nothing but equal to the area of this part। ये जो स्मॉल सेक्शन है, स्मॉल स्ट्रिप है, ये उसका एरिया है, बिकॉज एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है एफ, ब्रेथ है ds। अब सेम चीज मैं बहुत जगह पे रिपीट कर रहा हूं, यहां भी मैंने रिपीट किया सर, यहां मैंने रिपीट किया, यहां मैंने वर्क निकाला। कैसे वर्क निकाला, सर फोर्स कितना है एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है ds, तो यहां मुझे वर्क मिल गया, स्मॉल वर्क dw। और जब मैं वर्क निकाल रहा हूं तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिल रहा है, स्ट्रिप का एरिया मिल रहा है। फिर सेम काम मैंने यहां भी किया, सेम काम मैंने यहां भी किया। अब जब मैं इन सारे DWs को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। और जब मैं सारे वर्क को निकालने के बाद देख रहा हूं, मिला यार मुझे तो एरिया भी ऐड कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली में एरिया भी ऐड कर रहा हूं, तो मुझे इनिशियल से लेके फाइनल तक पूरा एरिया मिलेगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ।
एग्जाम में इसके ऊपर कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन। एक वेरिएबल फोर्स दे देंगे, बोलेंगे फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन। ओके, तो वो आगे वाले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो टाइम में इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स।